celebrated Makar Sankranti. In India, we consider the festival of harvest to be a very auspicious period. We thank the nature for the bounty that it offers us in the form of new crops. As part of this year's Makar Sankranti celebration, Consulate General of India, Frankfurt, in collaboration with the Indian Ladies Club, have organized for you, our dear Indian diaspora, a Rangoli competition and various cultural performances. I would now request the Consul General of India in Frankfurt, Dr. Amit Telan, to deliver the welcome address and to flag off this year's event. Namaskar, and a very warm welcome to all of you to the Consulate General of India in Frankfurt. On behalf of the Consulate, all my colleagues from the Consulate, my wife, Dr. Dipali Telan, I extend a very warm welcome to all of you. In fact, for the last 2 years, unfortunately because of the COVID pandemic, we have not been able to welcome all of you to the Consulate for various events. But whenever an opportunity arises, it's always our pleasure to see all of you coming and attending events in the Consulate, because we consider all of you as a member of the larger Indian community, a family of Indians who are here in Germany. As my colleague Resi has just informed, this is a very happy occasion for all of us. In different parts of India, the festival of Sankranti, or basically the sun's transition to the north, or Uttarayan as we call it, is celebrated in different manner, from north to south, from east to west. Every region has some or the other way of celebrating this very important occasion. And we thought that during this pandemic times, when all of us are longing for coming together and celebrating these events together, it is very important for us to celebrate this occasion, which is about transition. A transition from a difficult phase in life to something more positive, something more happy. So this festival is about that transition. So I'm really happy once again to welcome all of you. I'm also thankful to the members of the Indian Ladies Club here, because they are collaborating with us to celebrate this important occasion. And I understand that some competitions like Rangoli competition and other events have been organized. So it's my pleasure to formally announce the opening of this event, and I hope all of you will enjoy whatever we have put together in terms of the cultural performances, the Rangoli competition, and a little bit of cuisine, which will give you the flavor and taste of India. Most importantly, if I may also point out, it is my request to all of you, kindly keep wearing your masks, because even if all of you are vaccinated, all of you have completed your vaccination, it is very important that we follow the instructions related to the pandemic scrupulously. So my request to all of you, especially the small children are also here, some of them may not have been vaccinated, so it is very important for us as adults to take care, and please keep wearing your masks, except when of course you are having or you are tasting some of the delicacies which are on offer. Thank you once again. A very, very warm welcome to all of you. Thank you. Through the instructions or the information that we have. So we have around 13 teams that have registered for today's event. Down in the basement, we have allotted a specific 1.5 meter squares. So my colleagues here, if you could just raise your hand, Miss Mridula Singh, she's in the reception. I think Miss Pooja Mridula is there. Pooja Rajput, Rajina Rajendran, they will be down at all times to help you out with your questions. So we have a time of 90 minutes. So once we start, you have 90 minutes, and my colleagues will be helping you out with colors. If you require colors, you can definitely approach them. And like Sir had mentioned, we kindly request you to please continue to maintain the COVID protocol even when you are there down. And now it's also my pleasure to inform you that we have 3 esteemed judges today who will be judging your presentations at the end of the event. So they will be judging you based on 3 categories. The
The first one would be the concept that is Makar Sankranti, the color combination and your presentation. We request you when you're finished with the presentation to please keep the surroundings where you have done clean so that the judges can come and judge. And now to introduce the three judges, we have three judges here today. Ms. Bhagyashree Patil. Maybe you could, yeah. So, Ms. Bhagyashree Patil, thank you for joining us. She is an artist and she runs. Ms. Patil is an artist. She runs a successful art studio, The Language of Arts, in the Taunus region here near Frankfurt. She has around 200 students enrolled with her. Thank you, Bhagyashree. Our second judge for today is Ms. Anjalika Bhaskar Sawant. Anjalika, can we just see you? Yeah, thank you. Why don't you come here? Yes, please. Hi. Anjalika is a business consultant based out of Kronberg. She has immense experience in training and in the areas of communication and intercultural training, management and business development. Our third judge is Dr. Deepali Telang. Deepali ma'am is a dentist by profession and a German language teacher by passion. Dr. Telang is the president of Indian Ladies Club and also the main coordinators of today's event. Thank you all the three judges, and now all the participants, the 13 teams, can go down and you can pick up your lots, so you will be assigned your seat places. And like I told you, in case you have any questions, you can always approach the volunteers, and our judges will also be moving around, so you can definitely come back to us. We will be announcing, we will have cultural performances in the middle. Then when the cultural performances start, you will be requested to come up and we'll have cultural performances here. Thank you. So, bis später. Yeah? मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर आप सबका मैं स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज के दिन जो हम कार्यक्रम तरह तरह का करते हैं, कहीं इसे बिहू कहते हैं, कहीं कश्मीर में इसे हम शुशुक संग्रांत कहते हैं, तो तमिलनाडु में हम इसे पोंगल कहते हैं, गुजरात में हम इसे उत्तरायण कहते हैं, तो असम में इसे बिहू कहते हैं। इसी तरीके से मकर संक्रांति का पर्व हर राज्य में अवश्य ही मनाया जाता है। तो कविता जी असम से रहने वाले हैं, जहां हम सबको मालूम है कि इसे हम भोगली बिहू कहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस पर्व के बारे में, इस त्योहार के बारे में जो आपके राज्य में मनाया जाता है, संक्षिप्त में इसका विवरण हमारे उपस्थित अतिथिगण को दें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। सबसे पहले तो आपको और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को भोगाली बिहू की, मकर संक्रांति के लिए, लोहड़ी के लिए और पोंगल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि इस टाइम पे जो है एक फसल कटती है और उस वजह से सारे देश में रियली नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो ये त्योहार है वो मोरलेस सेम है। तो इसका मतलब ये है कि असम में जो ये भोगाली बिहू मनाया जाता है, इसका भी जो अर्थ है और या फिर जो इसके पीछे जो कारण है वो हार्वेस्ट है या फिर खेती है, राइट। सो इस टाइम पे फसल कटती है, फसल कटने की वजह से लोगों के घरों में अनाज भरा रहता है और इसके वजह से इस टाइम पे लोग मिलजुल के खुशियाँ मनाते हैं और खान पान करते हैं, खाते पीते हैं, और इसीलिए इसको भोगाली बिहू बोलते हैं, बिकॉज इस टाइम पे भोग लगता है, राइट। और इस टाइम पे लोग एक साथ मिलके खाना पीना करते हैं और
आप समझ लीजिए कि एक सांस्कृतिक जो है इसका एक सांस्कृतिक एस्पेक्ट भी है, कल्चरल एस्पेक्ट भी है। बिहू डांस होता है, बिहू सॉन्ग्स होते हैं इस टाइम पे। सो इसका आपने जैसे बोला कि कारण सेम है, एक है, लेकिन अलग तरीके से मनाया जाता है। अब अगर आप बोलेंगे कि कैसे अलग मनाया जाता है, तो थोड़ी चीजें हैं जो शायद देश के बाकी हिस्सों में लोग ना जानते हो। सो जैसे ये जो फेस्टिवल जब हम मनाते हैं इसको आसाम में, तो 5 दिन के लिए हर गांव में 5 दिन ये मनाया जाता है। और एक बहुत बड़ा घर बनाया जाता है आपके खेत में, या फिर जहां भी कहीं खुला अगर स्पेस कहीं मिल जाता है, कहीं खुली जगह है, बहुत बड़ा घर बनाया जाता है उसको। पूरे गांव का मिलाकर एक घर बनता है। हाँ, ये कम्युनिटी फेस्टिवल है, ये घर में नहीं बनता, ये कहीं अकेले में कोई नहीं मना रहा होता, ये सब लोग एक साथ मिलकर मना रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बहुत बड़ा घर बनाया जाता है, काफी बड़ा बनाया जाता है, सब लोग मिलके बनाते हैं। वहां पे हर घर से खाना आता है, जो जैसे अगर मैं बोलूँ खाना आता है, जैसे चावल आ गया, सब्जी आ गई, दाल आ गया, राइट। तो कच्ची सामग्री आती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हर शाम को वहाँ नाम कीर्तन होता है, हर शाम सब लोग मिलके नाम कीर्तन करते हैं। और उसके बाद रात को फिर खाना बनता है, जो सामग्री आती है, और फिर सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ, हाँ, प्रसाद के तौर पर। और ये 5 रात कंटिन्यूस होता है। और आज जैसे बिहू है, बिहू से पहली रात उसको उरुका बोलते हैं, सो ईव ऑफ बिहू जो बोलते हैं। तो उस रात तो पूरी रात जो है लोग खुशी मनाते हैं। जैसे कल रात कोई सोया नहीं होगा गांव में, स्पेशली गांव में कोई लोग सोते नहीं है, क्योंकि खाना पीना चलता रहता है। फिर नृत्य, बिहू नृत्य है, बिहू सॉन्ग्स है, वो सब चलता है। तो कल्चरल प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कल रात लोग जनरली सोते नहीं, और सुबह आज के दिन फिर खान पान अलग होता है। तो जैसे पीठा बनता है, तो बहुत स्वीट्स बहुत सारे बनते हैं, तिल के स्वीट्स बनते हैं, नारियल के स्वीट्स बनते हैं, फिर स्टीम्ड राइस केक्स बनते हैं, तो वो यूज होता है। फिर और एक बहुत ही स्पेशल चीज बनाते हैं, उसको चीरा दोई बोलते हैं। चीरा दोई जिसमें दही होती है और चिवड़ा जो बोलते हैं ना, तो वो सोप रहता है, वो गुड़ के साथ मिला के उसको खाते हैं। तो ये जो है आपको समझ लीजिए कि ये ऐसा प्रोग्राम रहता है और ऐसा खान पान रहता है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद बिहार का हूँ। अच्छा। हमारे राज्य में सुबह लोग उठकर स्नान ध्यान करते हैं और 5 किस्म का अन्न का दान करते हैं। जी। यह एक दैवी शक्ति को धन्यवाद ज्ञापन के तौर पर होता है कि सब कुछ आपका दिया हुआ है। धरती को ये ज्ञापन है, धन्यवाद ज्ञापन है, प्रकृति को धन्यवाद ज्ञापन है, ये सब कुछ आपका दिया है और आपका दिया ही त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि वाली ये भावना इसमें होती है। भोजन में मैं एक चीज पाता हूँ कि जैसे बिहार में हमारे यहाँ दही चूड़ा खाते हैं, और आपने जैसा कहा कि आपके यहाँ भी वो दही और चूड़े का है, तिल का प्रयोग होता है, गुड़ का प्रयोग होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको पता है ये भोजन के जो कारक है ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर है, चिकित्सीय गुण रखते हैं, आयुषीय गुण रखते हैं, और कमतर बहुतर हर राज्यों में इन चीज़ों का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। चाहे पंजाब में रेवड़ी के तौर पर प्रयोग हो। अभी मैं अपने दक्षिण भारतीय दोस्त से बात करूंगा तो मुझे इसकी जानकारी और मिलेगी। तो आप क्या यह प्रभाव क्या आपके भी राज्य में भोजन तत्वों को लेकर के है? बिल्कुल है। सो तिल, स्पेशली जो तिल यूज करते हैं इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि असम में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, और क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो इसलिए तिल से ऐसा बोला जाता है कि शरीर को गर्म रखता है, राइट। सो इससे फिर जो आपने बोला कि कफ का इशू हो सकता है, तो इस टाइम पे तिल खाना बहुत ही अच्छा मानते हैं। गुड़ आपको चीनी से बहुत अच्छा होता है, वो शक्ति देता है अलग, राइट। सो डेफिनेटली, और नारियल जो है ऐसी चीज है जो उत्तर से दक्षिण तक सबको एक कर देता है, राइट। सो नारियल से जो आपको गुण मिलते हैं वो तो सर्व भी देता है। सो आप
क्या आपके यहाँ जैसा आपने कहा कि एक दिन पूर्व रात्रि में आयोजन होता है, लोग आनंद लेते हैं, क्या बिहू के अवसर पर गाए जाने वाले गानों में से कोई दो पंक्ति आप हमें सुना सकते हैं? अगर गायन न हो तो आप एक कविता के तौर पर ही, लेकिन अगर बताएं तो बहुत खुशी होगी। देखिए ये तो बहुत ही आपने टफ क्वेश्चन पूछ दिया। एक्चुअली गाना तो नहीं गाता हूँ जी। इसका बताएं और अगर अर्थ आप बता सके तो और खुशी होगी। दो लाइन सिर्फ दो पंक्ति। जी जी जी। सो गाने की कोशिश करता हूँ, खराब हो सकता है लेकिन कोशिश तो हम कर सब लोग आप सकते ही श्रेणी में हैं। हैं। आपने बताया होता तो थोड़ा प्रिपेयर कर दिया था मुझे। एक छोटा सा ही बिहू सॉन्ग है, बिहू गीत बोलते हैं इसको। ओ जानो आकाशन धुनिया, ओ जानो तरारे जिलिका, ओ जानो आकाशन धुनिया, ओ जानो तरारे जिलिका, ओ जानो मनरे सरगत, ओ जानो तुमी मोर मेनका। इतना ही याद है। इस पल के बारे में दे सके। धन्यवाद नेहा जी। नमस्कार। उत्तरायण को अगर हम स्प्लिट करें तो इसका मीनिंग होता है नॉर्थ मूवमेंट। सो उत्तरायण हो, लोहरी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, ये सेलिब्रेशन है सन का, बिकॉज सन
उस समय नॉर्थ की तरफ मूव होता है। और अगर इसका सिग्निफिकेंस दिया जाए, इट्स अ एंड ऑफ विंटर, इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड स्टार्ट्स टू बिगिन समर। हमारे यहाँ पर सबसे अगर सिग्निफिकेंस समझाऊं तो ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है काइट फ्लाइंग। इसका अर्थ ये है कि हम भगवान को ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करते हैं हमारी तरफ से, एंड वी विश प्रॉस्पेरिटी एंड लक फॉर ऑल आवर फार्मर्स सो दैट द हार्वेस्टिंग इज वेरी प्रॉस्परस फॉर द कमिंग ईयर। And kites are very colorful, so it's means of, you know, you only see colors in the sky. अगर scientific significance समझाओ तो विंटर्स के बाद विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है, तो इसी बहाने हम सन और विटामिन डी दोनों को परसीव करते हैं। और हम घर में खिचड़ी बनाते हैं। ब्राह्मण्स को स्पेसिफिकली हम 21 टाइप के कच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स ऑफर करते हैं। घर में तिल का सेवन होता है और सबसे फेमस गुजरातियों के लिए होता है ऊंधियो, जो बनता है 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स से। एंड ईच ऑफ द वेजिटेबल्स जो उसमें डाले जाते हैं ऊंधियो में हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस। रूट से निकाली हुई सब्जियां यूज होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज होती है, तिल यूज हुआ जाता है, नारियल यूज हुआ जाता है। सो सारी सब्जियों का उसमें अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। एंड जैसे अनूप जी बता रहे थे और आप कह रहे थे कि ये सब कुछ हेल्थ रिलेटेड भी है, काफी साइंटिफिक रीजंस भी है। सो इसी तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं और काइट फ्लाइंग हम काफी मजेदार बना देते हैं। कोशिश करते हैं, कम्पीट करते हैं पड़ोस वाले छत वालों से कि उनकी काइट हम काट लें, पतंग काट लें, और काटने के बाद हम कहते हैं काय पोछे, आई हैव कट योर काइट। सो इस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं और फैमिली साथ में आती है। गुजरातियों के लिए तो खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दे लिव फॉर फूड एंड सो डू आई। सो ऊंधियो, श्रीखंड, पूरी आज मेरे घर में यहाँ पर भी है। सो That's how, I mean, उत्तरायण इसी तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। आप लाई हैं क्या? लाई नहीं, पता मुझे यहाँ पर मुझे प्रेजेंट करने का अवसर मिलेगा तो मैं जरूर लाती। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आने के बाद आपसे मैंने ये निवेदन किया और आप तैयार हुए, मुझे बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था। और आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई और जैसा मैंने महसूस किया कि वही चीज़ कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो हमारे पूर्वजों द्वारा वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसी हुई चीज़ें हैं, भले भौगोलिक क्षेत्र विभिन्न हो, लेकिन वो उनके जो आयुष गुण हैं उन अनाजों के, इसीलिए प्रयोग आपके यहाँ भी होता है। और जैसा कि अनूप जी ने बताया था कि उनके यहाँ एक रात पहले से पूरा उत्सव मनाया जाता है, उसी तरह ये पतंग की जो परंपरा आपके यहाँ उड़ाने की है, वो उसी उत्सव को एक अलग उल्लास के स्तर पर ले जाने के लिए है। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा तो नहीं कि पतंग को उड़ा करके दैवी शक्तियों को धन्यवाद करने के लिए नज़दीक से नज़दीक पहुँचाने की कोशिश आप लोग करते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट हाँ, इसका सिग्निफिकेंस यही है जो हम भगवान को ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं कलरफुल काइट्स के साथ, और उसे मनोरंजक बनाने के लिए ये कंपटीशन किया जाता है हमारे यहाँ। और आजकल तो बॉलीवुड में भी काफ़ी गाने लग गए हैं ये उत्तरायण के रिलेटेड, काइट फ्लाइंग के रिलेटेड। तो काफ़ी मतलब सुबह के 3-4 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं आपने तो पूर्णतः जानकारी दे दी, खबरों को एक संक्षिप्त मैं अंदाजा हो गया कि आपके यहाँ इसे कैसे मनाया जाता है। मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि क्या गुजरात की कोई एक खासियत इस अवसर पर, कोई जरूरी नहीं कि आपके उत्तरायण से ही जुड़ा हो, कुछ बताना चाहेंगे जो कि आपको लगता है कि शायद अन्य क्षेत्र के लोगों को गुजरात की ये विशेषता नहीं पता है?
उत्तरायण से नहीं हो रिलेटेड तो भी चलेगा। अच्छा, हमेशा ये बोला जाता है गुजरातियों के लिए कि ये बहुत मीठा खाते हैं, हर चीज में दाल मीठी, कड़ी मीठी, बट इसका एक रीजन है, बिकॉज गुजरात फॉल्स अंडर द कोस्टल लाइंस। यहाँ पे पानी बहुत सॉल्टी हुआ करता था पुराने जमाने में, जब ये प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स नहीं होते थे। तो उस सॉल्टीनेस को कम करने के लिए उसमें गुड़ का यूज किया जाता था। That is the major reason why Gujarati food is sweeter and people are more sweeter than the food. धन्यवाद नेहा जी, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। Thank you so much. धन्यवाद। प्रथम पारण अर्थात सुबह में मागी मनाया जाता है और शाम को लोहरी। इस विषय में आप थोड़ा संक्षिप्त जानकारी हमारे अतिथियों को दें। पहले सर धन्यवाद सर इधर मुझे बुलाने के लिए, और सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि सर ने कहा, ये पूरे इंडिया में भी मनाया जाता है और हमारे पंजाब में बहुत धूमधाम से इसे मनाया जाता है, जो लोहड़ी और माघी। माघी का ये है, माघी संक्रांत करके मनाया जाता है, और संक्रांत होती है जब माघ का महीना चढ़ता है। तो ये बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस है कि एक नया महीना जो माघ का महीना, जो पंजाबी कैलेंडर के हिसाब से। दूसरा इसका ये है, जैसे अभी पहले सभी ने बताया कि ये जैसे इंग्लिश में कहेंगे विंटर सोलिस्टिस, ये वो टाइम है जब विंटर एक्चुअली अपनी पीक पे आके खत्म हुई है। एंड जैसे पहले मैम ने भी बताया कि सन की जो मूवमेंट है नॉर्थ की तरफ, तो इससे इट सिंपली रिप्रेजेंट्स के आगे से हमारे समर टाइम शुरू हो। तो उस हिसाब से, और जो पहले था कि जैसे राबी क्रॉप्स अपने सभी कल्टीवेट किए और अभी हार्वेस्टिंग शुरू होगी, उस हिसाब से ये सारी सेलिब्रेशंस उन लेवल पे चलती हैं। इसमें अभी क्या है, जैसे आपने कहा शाम को जो लोहड़ी का फंक्शन है, तो उधर हमारे पंजाब में एक और साथ में जुड़ जाती है इसके फोक टेल। वो होता है कि एक जो भट्टी इंसान था जिसका नाम था दुल्ला भट्टी, और दुल्ला भट्टी जी ने, उन्होंने जो तब मुगल राज था इधर, और वो जैसे सभी को पता है कि हमारी बहू बेटियां को लेके जाते थे, तो उन्होंने एक्चुअली जाकर दुल्ला भट्टी ने बहुत को सेव किया था, वहाँ से लेके आए मुगल से। और सबसे ज़्यादा जो मशहूर हुई थी, एक दो बहनें थी, एक का नाम सुंदरी था, एक का नाम मुंदरी था। तो उस पे ये फोक सॉन्ग भी आगे बनाया गया है, जो कि लोहड़ी में गाया जाता है। वो मैं अभी टुवर्ड्स द एंड हम करते हैं वो, क्योंकि उसमें मुझे फिर सभी का साथ चाहिए होगा, तो तब हम गाएंगे। ये जैसा भी हम लोगों ने अन्य जो हमारे अतिथि थे उस सब ने भोजन में जो इन चीज़ों का प्रयोग, जो कि गर्म तासीर की होती है, उपयोग होता है, उसी तरीके से आपके यहाँ मैंने देखा है कि शाम को अलाव जलाया जाता है और लोग उसमें मूंगफली, रेवड़ी इत्यादि डालते हैं और खाते भी हैं। क्या इसका कोई धार्मिक महत्व है, या यह महज एक जैसा अन्य जगहों पर फसलों के एक अंजलि देने का, एक दैवी शक्तियों को धन्यवाद करने का एक हवन की तरह का ये तरीका है? जैसे आपने कहा सर, बिल्कुल ऐसा ही है, एक किस्म का हवन की तरह, क्योंकि आगे एक जो शक्ति है उसे हम पहले प्रवान करते हैं ये चीज़ें, जो कि हमारी ज़िंदगी में, और हमें भी पूरा सारा कुछ फलता रहे, होता रहे, और इन चीज़ों को पहले आग में प्रवान करके फिर खुद भी खाया जाता है। और ये जो चीज़ें हैं, जैसे मूंगफली होगी, और सभी ने बताया तिल होते हैं, तिल हुई, रेवड़ी हुई, ये सारी चीज़ें गर्म है, और गर्म का भाव के ये सभी तासीर गर्म है इनकी।
और उसके लिए दे आर ऑफ कोर्स कंसिडर्ड गुड फॉर द हेल्थ के जब ठंड अभी चल रही है और ये ट्रांजिशन फेस हो रहा है तो उसमें बॉडी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होती है। तो उधर उसको बॉडी को पूरा ये ट्रांजिशन जो स्मूथली जाए उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं और इनकी ऑब्वियसली इनकी हेल्थ वाइज बहुत इम्पोर्टेंस है। हाँ जी, और एक और हमारे होता है जो स्वीट्स में जो स्पेशल है पंजाब की, वो होगी उसे भुग्गा कहते हैं। तो वो जैसे इसका मेन तेल है उसमें और साथ में खोआ जो होता है, खोआ और तेल और ऑब्वियसली जो मीठापन भी, तो वो स्पेशल है उधर का। और ये बहुत सॉफ्ट बनता है क्योंकि तेल ऑब्वियसली तेल में जो तेल होता है वो तेल सारा कुछ इसमें जाकर और ये बड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और इसकी हेल्थ इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि ये वही तासीर गर्म है, इतनी क्वांटिटी में तेल किसी चीज़ में भी नहीं होता जितना इसमें आ जाता है। तो इसीलिए ये अच्छा ये कंसिडर भी तभी किया जाता है कि उसी टाइम पे खा सकते हैं। उसके बाद अगर कोई कहे कि महीने 1.5 महीने बाद, तो वो इतना वाजिब नहीं समझा जाता क्योंकि गर्म ज़्यादा है चीज़, तासीर उसकी गर्म है। धन्यवाद, आपने काफ़ी जानकारियाँ दी। अब मैं चाहूँगा कि आपने जो लोहड़ी का जो आपका जो लोकगीत है उस बारे में आप जरा कुछ बताएं। अगर गा सकते हैं तो गा कर सुनाएं, न तो आप कम से कम एक कविता के तौर पर ही सुनाएं। हालांकि हमारे 2 सिख बच्चे और इधर बैठे हैं, उधर दाहिनी तरफ एक सिख परिवार भी है हरप्रीत सिंह जी का। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग हरकमल जी को ज्वाइन करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हाँ जी, सुंदर मुंदरिए हो तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले दी भी आई, शेर शक्कर पाई कुड़ी दा लाल पाठा हो सालू कौन समेते, चाचा गाली देते चाचे चोरी कुट्टी, जिमीदारा लुट्टी जिमीदार खुदाया बोले आया एक कोना पर रह गया, सिपाही फेर का रह गया, सिपाही ने मारी इत्र 92 रो ते 92 पेट, सानू दे दे लोड़ी ते तेरी जीवे जोड़े। एंड वाली लाइन का मतलब यही है कि जो मांगने भी आते हैं जैसे लोहड़ी के सभी प्रॉस्परस हो सारे, तो वो जब आपसे कुछ घर से मांगेंगे वो कहेंगे कि आप हमें लोहड़ी दो तो आपका घर भी फले फूले, उसका ये है और आपकी जोड़ी बनी रहे, ये इनका सिग्निफिकेंस है। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरप्रीत आपका धन्यवाद, 2 बच्चे आए हुए हैं इनका धन्यवाद, आपके परिवार का धन्यवाद। और हरकमल जी आपने हमें ये पंजाब का ये लोहड़ी का गाना बताया, बहुत ही अच्छा लगा। और इसके माध्यम से मैं पंजाब में रहा हुआ हूँ, मैंने देखा है लोग घर घर जाके लोहड़ी मांगते हैं, उसमें किसी भी किस्म का अमीर गरीब का दुराव या छिपाव चीज नहीं आती और एक बहुत ही एक सामाजिक समरसता और आपसी बंधुत्व की भावना को बढ़ाने में यह अगाध योगदान देती है। अब हमारे आखिरी वक्ता है श्री विभु मोहंती जी जो उड़ीसा से आते हैं। विभु जी आपका स्वागत है। आपके यहाँ इसे मकर संक्रांति ही कहते हैं और आपके राज्य की एक खास बात है कि बिहार झारखंड से लेते बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों का प्रभाव आपके यहाँ के कल्चर में देखा जाता है और लेकिन काफी धूमधाम से आपके यहाँ ये मनाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि अपने राज्य में मनाए जाने वाले इस मकर संक्रांति के त्योहार के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमारे माननीय अतिथियों को दें। सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद अजय जी, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने राज्य के बारे में और ये राज्य के कल्चर के बारे में आप सबसे कुछ शेयर कर सकूं। सबको पता होगा कि उड़ीसा का जो कल्चर है वो जगन्नाथ धाम के साथ जुड़ा हुआ है। जो पूरी जगन्नाथ जो हम लोग जगत के भगवान बोलते हैं जगन्नाथ जी, उनका जो कल्चर है वो कल्चर उड़ीसा के लोगों का है। तो मकर संक्रांति को लेके जगन्नाथ भगवान और उनकी फैमिली का एक
काइंड ऑफ कल्चर है जो सबने बोला एक्चुअली उत्तरायण यात्रा होता है। बेसिकली अगर आप उसका एक बहुत पुराना स्टोरी है कि आज के दिन सूर्य भगवान अपने बेटे शनि को मिलने के लिए यात्रा करते हैं और सबको पता होगा कि वर्ल्ड फेमस कोणार्क सूर्य टेम्पल उड़ीसा में है। तो वही कल्चर पूरी टेम्पल में भी है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ भी इसलिए उत्तर यात्रा करते हैं अपने फैमिली के साथ। इसी दिन जब प्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई प्रभु बलभद्र और उनकी जो बहन है देवी सुभद्रा, तीनों एक विशेष वेशभूषा में आते हैं और एक पगड़ी जो वो पहनते हैं और साथ में यात्रा करते हैं। उसके बाद देवी लक्ष्मी जो प्रभु जगन्नाथ की धर्मपत्नी है, उनके घर से मकर चावल आता है। वही मकर चावल घर घर में बनता है उड़ीसा में और भगवान जी को चढ़ाया जाता है। मकर चावल जो होता है एक्चुअली वो जो फर्स्ट हार्वेस्टेड राइस होता है, जो पहले कटा हुआ धान का जो राइस होता है, उसके साथ गुड़ और नारियल, छेना, देन सीसम सीड्स और बहुत लोग केला डालते हैं और बहुत लोग उसमें रसगुल्ला भी डालते हैं। तो ये मिला के बनाया जाता है और उसको भगवान को चढ़ाया जाता है। इसके व्यतीत हम लोग जो बिकॉज आपने जो बोला सब बिहार, आसाम, उड़ीसा हम लोग का कल्चर सेम है। तो जो अरूप जी ने बोला कि हमारे घर में भी राइस केक्स बनते हैं और वो भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। उसको छोड़ के हम लोग घर में पायसम बनाते हैं, जो राइस चावल की खीर, जो उसको भी हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं। तो ये घर घर में किया जाता है, घर में ये भगवान को चढ़ाया जाता है। आपने भोजन के बारे में भी बता ही दिया और ये हम पा रहे हैं कि हर राज्य से लगभग वही अन्न है जो विभिन्न रूप में या उनके पकाने की जो प्रक्रिया है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वही अन्न का प्रयोग होता है। और ये बहुत खुशी होती है कि हमारा देश जो विभिन्नताओं में एकता का देश कहा जाता है, भौगोलिक परिस्थितियां विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग है, इसके बावजूद जो हमारी परंपरा और हमारी सभ्यता का ये सूत्र जो हर जगह ये चीज एक जैसी होती है, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है जो शायद विश्व के किसी अन्य देश में नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि क्या जगन्नाथ जी को जो ये भोग लगता है ये सिर्फ आज ही के दिन लगता है? हाँ जय जी, परंपरा के अनुसार ये जो मकर चावल है ये मकर संक्रांति के दिन ही भगवान जी को चढ़ाया जाता है और ये हजारों साल से हो रहा है। तो वो परंपरा हमारे साथ भी आज तक चली आ रही है। मतलब वो एक खास प्रसाद है जो कि सिर्फ आज ही के दिन साल भर में बनता है जगन्नाथ जी के लिए। इसके अतिरिक्त मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई आपके राज्य की एक खासियत जिसको आपको लगता है कि हम लोगों को साथ आप साझा करें, कृपया हमें बताएं। बहुत लोग एक्चुअली जब मैं इंडिया में बहुत राज्यों में काम किया हूँ, बहुत लोगों को मैं जब बोलता था मैं उड़ीसा से हूँ और मैं सरप्राइज होता था, बहुत लोगों को पता नहीं उड़ीसा कहाँ है। फिर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि सर वो ईस्ट में है, पुरी जगन्नाथ धाम है। तो पुरी जगन्नाथ धाम सबको पता है लेकिन उड़ीसा बहुत लोगों को पता नहीं है। तो वो जो पुरी जगन्नाथ धाम का कल्चर है वो हमारा कल्चर है, वो उसके लिए हम लोग गर्वान्वित है। यही हमारी विशेषता है कि हम लोग अतिथि देवो भव, ये जो हमारा कल्चर है हम लोग इसको हजारों साल से मानते आ रहे हैं। अतिथि ये तो भारत की सभ्यता है, भारत का कल्चर है, लेकिन ये हमारी उड़ीसा का भी एक बहुत बड़ा कल्चर है। इसके अलावा अगर आप देखें, उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहां ना कि आपको हर जगह से लोग आपको मिलेंगे। यहाँ तक कि जो उड़ीसा के आदिवासी समुदाय हैं वो लोग भी इस मकर संक्रांति को अपने हिसाब से पालन करते हैं,
अपना ट्रेडिशनल सॉन्ग पे डांस करके, अपना ट्रेडिशनल भोजन करके पालन करते हैं। ये जो चीजें हैं ये उड़ीसा में पाई जाती है। क्या इस अवसर पर गाए जाने वाले कोई परंपरागत गीत की कोई पंक्तियां आपको याद है? हाँ, एक दो पंक्तियां याद है। मेरा आवाज से आप सुनाए। मैं जब छोटा था तो हम लोग सुनते थे, मकर संक्रांति पाप धोइनी देई थाए केते पुण्य, गंगा स्नान परी पुण्य मिले धन धन्य। इसका मतलब ये है कि मकर संक्रांति सारा पाप धो लेती है और गंगा स्नान जैसा पुण्य वो हमको मिलता है, और हमको धन्य और धान और धन्य दोनों मिलता है। धन्यवाद अनूप जी।
क्षमा चाहूंगा, अपने केरला से आए हुए हम अपने अतिथि का नाम लेना भूल गए। मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। name is Sibi Unithan, basically from Kerala. In Kerala, this Magar Sankranti is more popular actually in Tamil Nadu, and the Tamils in Kerala celebrate it with Pongal. It's more like the other places with payasam and all, making payasam at home, and then it's also like you feed the cow, you mix decorate the cow and all. That's more in the Tamil Nadu and the Tamil people in Kerala. And the special thing in Kerala is there is this temple, Sabarimala temple is there. Their special puja is there on this day. So this also is the beginning of the month of Magar in Malayalam calendar, and that special opening, and on this day in the old days the kings of Travancore had given special ornaments for the Sabarimala Ayyappan. This will be taken and that will be put on the deity, and there is a Divagana, and also at the temple, from the temple you see at a distance where the original, the Mool Stan they call it, of the deity is remotely in the temple, and there they do this Arati, which can be seen from the areas in the temple. A lot of people go there to see this, and that's called Magar Jyoti. That's the whole of Kerala we looks forward to seeing this Magar Jyoti, and this festival happens in Sabarimala. That's the specialty. Apart from puja at Sabarimala temple, is there any other religious significance of this festival in Kerala? Because it's near to Tamil Nadu and a lot of Tamils are there, and it's together. We also it's Pongal. Yeah, that's the. Thank you. Thank you so much. May I now request Shivani, Ms. Shivani Unithan. Ms. Tanvi Unithan. Thank you, Ojaji. Thank you, all our participants. You really took us through a journey in India during this wonderful Makar Sankranti celebration. To all of you gathered here, we are almost coming to the end of our Rangoli competition. Very soon we will be judging and the winners will be announced. We will be doing that in the basement. I would request all of you to participate in the food that is being served down in the basement. The Indian Ladies Club has prepared such wonderful food for us from different states. Please do come and join us and also be a part when we announce the prizes.